Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new here, I am Valen and I'm a beauty and lifestyle content creator on your YouTube. I have recently started a Bride to Be का series जहाँ पे मैं हर चीज बता रही हूँ आपको जो करनी चाहिए as a bride to be it shopping, planning. In this video, we will be talking about the best timeline to book everything. Be it your makeup artist, your shopping experience, your gold jewelry. तो इस वीडियो में हम दो तरह के ब्राइड्स के बारे में बात करेंगे. The first bride who is taking care of the entire wedding planning itself, like from the start to the end. And the second bride is someone जिनकी family उनका wedding planning कर रही है, but they are now going to be booking everything for themselves, like such as makeup artist or mehendi wali or shopping, everything of that sort. So yeah, I will tell you all the timelines from the start to the end because I was a 2024 bride myself. So this is my personal experience of everything since I was also someone who did the entire wedding planning. So from starting to booking the venue, hotel and everything else, till the end is the makeup artist, your mehendi wali and everything of that sort. So without any delay, let's jump right in the video. So let's start from the start. So हमारी wedding का date निकल चुका था in the month of Feb 2023 and the wedding date was in Feb 2024. So we had a whole year to plan. So the first things we booked was the venue and the hotel because इसके अंदर बहुत ही एक time consuming process है which takes huge amount of money as well because कोई चीज़ आपके budget में fit होगी, कोई चीज़ आपके aesthetics fit होगी और कोई चीज़ आपके requirement को fix होगी. तो इसके लिए तीनों का मिलना जब एक हो जाता है then you book the venue and the hotel which is a very lengthy process. तो सबसे पहले आपको वही book करना चाहिए and that was 10 to 11 months prior to the D-Day. So I was a bride who was sitting in Ahmedabad and the entire wedding was taking place in Delhi. So the next best thing for me to book was the wedding planners. I am telling you, if you have the budget, if your budget allows, get wedding planners because they are going to cut down your workload up to 60%. I am not kidding. It was so relaxing for me, my family members, my in-laws, everyone, Aditya also because everything was happening. We had people to rely on. That is the reason why wedding planners are utmost importance. If your budget allows, get them ASAP because एक बार उनको बुक कर लिए तो धीरे धीरे आपके ढोल वाले, आपके दूसरे वेंडर्स, शहनाई वाले, साफे वाले सब बुक होते जाएंगे बिकॉज द वेडिंग प्लानर्स विल टेक केयर, विल कीप रिमाइंडिंग कि ये बुक करना है, ये बुक करना है, एंड दे विल गिव यू द ऑप्शंस. Now your part is to select what you like and what fits your budget and that's about it. So I booked the wedding planners 8 months prior to my wedding. The next two best things that you are going to book are the decorators and caterers. Now, if the wedding planners are there, you are going to first set the theme of all the occasions and accordingly, you are now going to close down on the caterers and decorators because इनके में बहुत बड़ा lump sum amount जाता है and इसकी वजह से उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा तपास करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, किनका खाना अच्छा है, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होगा. So these were closed down 6 months prior to my wedding because I wanted to close them ASAP. छोटी छोटी चीज़ें इसके बाद भी होती रहेंगी जैसे ढोल वाले, साफे वाले, घोड़ी वाला, मेहंदी वाले, everything can take place बाद में बट फर्स्ट जो बड़े बड़े काम है वो सबसे पहले खत्म कर लोगे तो आपके दिमाग से टेंशन भी कम होता जाएगा. Now that we are done with the wedding planning part, we are going to move on to the more focused areas that you need to book as a bride to be. First is wedding shopping. इसके लिए I would highly suggest you start wedding shopping 3 months prior to the wedding because काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. इसके लिए मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ that things you need to take care of before you start your wedding shopping. So वो देखना मत भूलना. So subscribe to my channel if you haven't and hit the notification bell so you get notified every time I upload a video. So that's there. बट हाँ, अगर आप 2-3 महीने पहले चालू कर दोगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड. नहीं तो वेंडर्स आपका बहुत फायदा उठाएंगे इस चीज़ का कि अरे इसके पास तो टाइम कम है तो इसको कुछ भी बना के दे दोगे तो चलेगा. चेंजेस के लिए आप झिझकोगे कि भाई कहूँ कि नहीं कहूँ बिकॉज टाइम कम है, मुझे तो ये लहंगा अभी पहनना है. सो इट्स बेटर यू स्टार्ट 3 months पहले ताकि आपका सब कुछ सॉर्टेड हो. कोई भी अच्छा वेंडर या अच्छा बुटीक अगर आपका कोई भी कपड़ा स्क्रैच से बना रहा है, अगर आपका लहंगा स्क्रैच से बना रहा है जैसे मेरा हुआ था, माई कलर वॉज कस्टमाइज, द इंटायर थिंग वॉज द सेम बट द कलर वॉज कस्टमाइज. तो ऑफकोर्स उसको स्क्रैच से बनना पड़ता. इट टुक 2 months फॉर इट टू गेट रेडी एंड आई लव्ड माई लहंगा. आई वॉज सो चिल कि हाँ चलो, लहंगा वॉज द फर्स्ट थिंग आई बुक्ड एंड आई वॉज मच मोर रिलैक्स्ड आफ्टरवर्ड्स टू बुक फॉर द अदर फंक्शंस. बट येस, इसका ट्राई ऑन, इसका सब बहुत टाइमली होता रहता है. जैसे 3 महीने पहले इसको बुक किया, 2 महीने बाद
मैंने उसको ट्राई ऑन किया फिर से एंड देन दे डिलीवर्ड इट टू मी इन द परफेक्ट वे. सो या दैट्स देयर. मूविंग ऑन टू द मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं क्योंकि अपना खुद का मेकअप करने वाली थी फॉर ऑल द 4 फंक्शंस दैट आई हैड, फेरा, हल्दी, संगीत, रिसेप्शन, एवरीथिंग. सो आई डिसाइडेड टू बुक हेयर आर्टिस्ट ओनली बिकॉज मेकअप तो मैं खुद ही करने वाली. तो आई बुकड अ हेयर आर्टिस्ट a 6 months prior to my wedding. But in case if you're booking a makeup and a hair artist, make sure you book them 6 months prior. Book your मेहंदी वाली 3 months prior to the wedding. Now आप बुक तभी कर पाओगे जब आपके पास डिजाइन कुछ सेट है. सो मेक श्योर आपके पास Pinterest से पहले कुछ डिजाइन आपने निकाल दिया, उससे लेकिन गिव हर द रेफरेंस कि भाई मुझे पोर्ट्रेट्स बनवाने हैं कि नहीं बनवाने हैं, मुझे क्या क्या करना है, कुछ डिजाइन क्या है, उसके हिसाब से वो प्राइस देंगे एंड तभी आप बुक कर पाओगे. सो मेक श्योर यू हैव दैट इन योर हैंड. Next, for your body care such as facial, cleanup, bikini wax, waxing, everything else, the best time to book a salon or your parlor वाली दीदी is 2 to 3 months before the wedding. प्लीज़ कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश मत करना. स्टिक टू वॉट एवर यू बीन गेटिंग इट डन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. ना अगर आप बैक का वैक्सिंग कराओगे या कहीं का वैक्सिंग कराओगे जो आपने पहले कभी नहीं कराया है, यू आर हाईली लाइकली टू गेट एक्ने. इफ यू डोंट वांट दैट, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू. प्लीज स्टिक टू दैट बिकॉज और प्लीज कोई भी नया स्किन केयर भी ट्राई करने की कोशिश मत करना. स्टिक टू वट एवर यू बीन गेटिंग इट डन. मैंने 15 दिन मेरे शादी से पहले एक ब्रांड के लिए वीडियो बनाना था. सो आई ट्राइड अ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट. इट गिव मी रेडनेस एंड रैशेस अराउंड माई फेस. माई इंटायर दिस पोर्शन वॉज रेड. But the brand was kind enough to suggest me a dermatologist and I went there and they suggested me some cream or something like that sort. तो वो फेड अवे हो गया था 5 से 6 दिनों में. सो इट्स हाईली सजेस्टेड, प्लीज डू नॉट डू समथिंग न्यू. नेक्स्ट, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेने वाले हो देन आई हाईली रिकमेंड गेटिंग इट डन 2 months बिफोर द वेडिंग डे. नाउ आप सब कुछ एक शॉप से मत लेना, ट्राई डिफरेंट ज्वेलर्स. तो आपको एक वैरायटी मिलेगा बिकॉज हर ज्वेलर के पास एक टाइप ऑफ वैरायटी होती है. किसी की एंटीक ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, किसी की पोल की बहुत अच्छी होगी. सो समथिंग लाइक दैट सॉर्ट. सो इट्स सजेस्टेड कि आप अलग अलग ज्वेलर से लो. सो यू गेट अ वैरायटी ऑफ डिजाइन्स टू ट्राई आउट. Now for accessories such as bangles, footwear or even artificial jewelry for your wedding day, best time is to start 1.5 to 2 months before the wedding. लेकिन तभी जब आपके हाथ में सारे कपड़े या आपकी जो आउटफिट्स है उसके ब्लाउजेस सिल के आ गए हो. ब्लाउजेस लेकर ही जाना बैंगल्स या आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने बिकॉज तभी आप अच्छे से मैच कर पाओगे उस चीज को, वरना पता नहीं शायद ऊपर नीचे कुछ हो जाए. फॉर ब्राइडल चूज और शॉपिंग दैट इज अ क्लोथिंग, द बेस्ट टाइम रिकमेंडेड इज 1 month to 2 months बिफोर द वेडिंग. सो 2 महीने पहले आप वो जो हैवी वाला जो सेट्स होते हैं जैसे ये साड़ी या आपके हैवी जो आपके सलवार सूट होंगे या कुछ घाघरे होंगे या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसको 2 महीने पहले से ढूंढना चालू कर दो. सो यू विल बी एबल टू गेट दैट आउट. नाउ फॉर रेगुलर वेयर, जब घर में पहन, जो आपके ससुराल में आपके घर में आप पहनने वाले हो या जब भी आप शादी के बाद कहीं पहनने वाले हो, दैट सजेस्टेड टेक अ 1 month बिफोर द वेडिंग. कोई भी आपके ट्रस्टेड शॉप में जाओ या वहां से ले लो, उठा के आ जाओ. इट्स नॉट अ बिग डील. तो 1 to 2 months is the best time to get your bridal trousseau done. Similarly, for bridal makeup trousseau, 1 month is more than enough to start shopping because आप ऑनलाइन करोगे या अगर आप ऑफलाइन भी लेने जाओगे, सब कुछ अराउंड 1 week में आपके पास आ जाएगा हाथ में. सो यू डू नॉट नीड अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दैट. आई होप मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ. अगर मैं भूल गई हूँ देन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम. To all the bride-to-bees, may you have the most beautiful wedding you've ever dreamt of and even happier marriage. Just don't forget to smile and laugh a lot on your wedding day because यही चीजें बाद में याद आएंगी. Share this video with every bride-to-be you know so that we can help them a lot in these times. And don't forget to subscribe, hit that notification bell so you get notified every time I upload a video. Like, comment and share this video a lot and I will definitely see you in the next one. Bye.